Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 10th of January 2025. First of all, gold import data. So why is there is a revision? So there is a data transmission system which is ICE Gate system, online system, which in which the gold import data was having some errors which was caused by the migration of data transmission system. So in April to November 2024, the imports they were adjusted from $49 billion to $37 billion. बिफोर रिविजन हम देख सकते हैं कि एंड आफ्टर रिविजन कितना ज़्यादा डिफरेंस है एंड UAE, Switzerland, South Africa, they also saw significant adjustment in the trade data. So data errors they emerged from the discrepancies in the SEZ and DTA zones. So ये highlight भी करता है कि how much important data accuracy is and seamless transmission protocols for maintaining the global trade and how it can impact the whole market analysis and also policy making. So SEZ, Special Economic Zones, ICE-GATE, is Indian Customs Electronic Gateway. तो वो ये डेटा मेंटेन करते हैं उसमें इस लेवल पे एरर्स देखे गए. देन नेक्स्ट इज मेटा फैक्ट चेकिंग. तो मेटा is basically planning to replace the fact checking program with the community based notes. Similarly, the technology is also used by X, that is Twitter, the platform. So Indian fact checking organizations which are reliant on Meta's platform, they are also seeing this as an alarming step. That is why we are seeing that there is panic in India. And fact checkers, they are also facing uncertainty in funding and operations if Meta will not be continuing the program basically. So misinformation, it becomes a serious challenge with social media and with growth of generative AI, we are seeing deep fakes. So that is why misinformation could also rise in the absence of the credible fact checking units. Different platforms, for example, Newsmeter, factchecker.in, they may also face operational challenges. So it can also be impacting the digital literacy of the users. But if we talk about the community based notes, which is similar to Twitter, so it will be encouraging a more inclusive participatory approach where the users can flag a particular post as fake, false news, or as correct news. So, India and Taliban dialogue. India is basically pursuing a pragmatic and we can say a realistic approach in its dialogues with the Taliban. The Indian Foreign Secretary Vikram Misri and Taliban's also acting foreign ministry, they met in Dubai and they are basically focusing on ensuring regional security and assisting the Afghanistan's humanitarian crisis also. So India is not only offering the humanitarian aid but also the material support. They are addressing the challenges which are posed by Taliban's tied to TDP, that is Tehreek-e-Taliban Pakistan, and also Al Qaeda. Chahabar port serves as a hub and it serves as a key point for the trade and also various operations. So India's approach, we can say it is based on realistic and pragmatic principles. And India also aims to tackle the influence of Pakistan. It aims to tackle that also and to contribute to the regional stability. Also, balancing how to balance the strategic interests with humanitarian concerns, it remains very critical between the relationship of India and Afghanistan. The next, if we talk about, so we are having trends on what to expect in terms of economy in 2025.
So India's economic growth, we're talking about India's economic growth. We are also talking about the global shifts that are happening. So we can see some key trends. India will continue to grow faster than other emerging markets if we talk about on average. So GDP growth of India consistently it surpassed various major economies over the past decade and वो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू रहने वाला है अभी भी. ग्लोबल शिफ्ट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिवर्सल ऑफ यूएस डोमिनेंस. मतलब जो यूएस का इकोनॉमिक्स सुप्रीमेसी मेंटेन रहता है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है सेवरल सेक्टर्स में. तो ग्रोथ माइनस में भी यहाँ पे 2000s के अंदर हम देख रहे हैं, 10+6 में 2010 टू 24 के बीच में देख रहे हैं. इसके अलावा देयर आर वेरियस इमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो जो कि आउटपेस भी कर रही हैं यूएस को. चाइना जो है वो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह उभर के आगे आ रहा है. इसके अलावा ट्रेंड्स भी देखे जा रहे हैं जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं. एआई, तो ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए. चाइना इज बिकमिंग इन्वेस्टेबल अगेन. अमेरिका विल लुक लेस एक्सेप्शनल. ग्रोथ रेट हो सकता है कम रहे. फिस्कल डेफिसिट इज अमेरिकाज फेटल फ्लॉ. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कटिंग बैक. ऑल्सो emerging markets are there. China is acting as an attractive investment destination. There is also different trends regarding the sectors. For example, AI. So AI race is becoming more and more popular among the big techs. More and more big techs are basically investing in AI, majorly from the US, which is heavily investing in artificial intelligence. Also, the infrastructure in India. India is also focusing on infrastructure, how to sustain the long-term growth and जो development gaps है उनको bridge करना. And India is also seeing shift from small cap companies to large cap companies. So it reflects that the market is maturing more and more. The Indian business landscape is maturing. But there are also challenges. For example, public debt in the developed nations. It is increasing in amount and they are required for the same level of GDP growth in developed countries like the US or if we talk about Europe. So these are the major happenings in the global trends and ये prediction कुछ 10 है जो किए गए हैं. So for economic development in GS3, even in the bilateral relations, it influence various relationships of, for example, US and China, US, India and China, India and US. So that is why it becomes important. Then PM pitches for peace. So world's future is in Buddha and not Yuddha. हम्म. तो जब हम ये बात करते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंडिया का बेसिकली जो बैलेंस ऑफ पावर है एंड जो सेल्फ इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्रिवन एक्शंस होते हैं दे क्रिएट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम. सो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस, cooperation, human values, humanity first, and India also strongly raises the voices for global south. सो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो अप्रोच है इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच एंड ऑल्सो एन आइडियलिस्टिक अप्रोच. एंड फॉर इंडिया ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज सुप्रीम एंड इट इज ऑलवेज फर्स्ट. Then we need accessibility rules that are based on principles. So we are talking about Rights of Persons with Disability Rules 2017, Rights of Persons in Disability Act 2016. So how to make various sectors truly accessible. So what is the idea of accessibility here? So there is difference between accessibility and reasonable accommodation. Accessibility and reasonable accommodation, they both originate from the principle of substantive equality of the Constitution.
So rights of the persons with disability, it is a major concern that is not addressed sometimes. Hmm. So there are various barriers. First of all, मेजर चैलेंज की अगर हम बात करते हैं तो जो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो ही काफी ज्यादा नैरो है. What are the different types of disabilities which we are talking about? That is only very narrow. Then अगर हम बात करते हैं कॉलेजेस की, स्कूल्स की, वहां पे भी हम बात कर रहे हैं कि हम गाइडलाइंस लेके आएंगे एंड पूरे ही कैंपसेस को भी और ज्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे. मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन प्लान होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड्स हैं, हार्मोनाइजिंग स्टैंडर्ड्स हैं, पीरियोडिक रिव्यू है इन एवरी 5 ईयर. फॉर एग्जांपल कनाडा जो है वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप ले डाउन करता है टू अचीव अ फुल एक्सेसिबिलिटी बाय 2040. सो वो इंडिया में भी हम कर सकते हैं. एक्ट के अंदर भी जो बैरियर्स हैं इन दी ब्रॉडेस्ट फॉर्म पॉसिबल उनको डिफाइन कर सकते हैं. tangible and also intangible barriers, not only within the physical ecosystem but also within the digital ecosystem. So जब हम बात करते हैं the attitude of society, जो attitudinal barrier से link होता है वो accessibility must also align with the evolution of the understanding of disability. हम हमेशा दिमाग में सोचते हैं डिसेबिलिटी दैट इज परमानेंट इन नेचर, बट टेम्परेली भी टेम्पोरल डिसेबिलिटी भी होती है. फॉर एग्जाम्पल फॉर द प्रेग्नेंट मदर्स, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, तो उनके लिए भी देर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ रैम्स. दे हैव टू कंट्रोल देयर इमोशन and the workload is also there, so it is not only creating physical inaccessibility but also mental distress. So section 48 of RPWD Act, it also mandates that the central and the state government, they must regularly undertake social audits for all the general schemes and programs to ensure that they are being implemented and क्या concern and need है of the persons with disability. तो social audit एक important role play करेगा. Broadening the definition of disability, then also identifying the changing nature of disability related challenges with the evolving world, operationalizing the social audit, making sure that clear guidelines are there under the different acts. So making the sometimes the compliance cost is also very high, तो उसको कैसे हम कम करेंगे. इसके अलावा ग्रीवियंस रिड्रेसल, मेंटल सपोर्ट भी हमें इंक्लूड करना चाहिए फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, ताकि ना कि ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंक्लूसिव बना रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को हम इंक्लूसिव बना रहे हैं, बल्कि उनके मेंटल हेल्थ को भी हम इंक्लूकेट कर रहे हैं इन दी प्रोसेस. देन ऑल्सो महाकुंभ में हमने देखा कि एआई का इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं. अंडर वाटर ड्रोन्स यूज किए जाएंगे टू ट्रैक दी क्राउड. सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें डिफरेंट टूल्स को यूज करके मॉनिटर किया जाएगा टू मेक श्योर दी सेफ्टी. मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिड्रेस ग्रीवियंस रिड्रेसल काउंटर्स होंगे. सो मोर देन 200 AI powered video analytic cameras, they will be used ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करने के लिए, सेफ्टी मेक श्योर करने के लिए, क्राउड डेंसिटी. सो एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे. एआई सर्वेलेंस सिस्टम विल बी यूज्ड, चैटबॉट्स विल बी यूज्ड इन 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें गूगल मैप्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि नेविगेशन के लिए हेल्प मिल पाए. GIS टेक्नोलॉजी, दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, which is integrated with Google Maps, it will also be used in 10 zones. So हम देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को हम इंटीग्रेट करें फॉर द पब्लिक सेफ्टी ऑल्सो एंड आइकॉनिक महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट्स के लिए भी. देन रिसेंटली हमने बात किया था अबाउट वाटर डिप्लोमेसी. सो वाटर डिप्लोमेसी बिटवीन चाइना एंड इंडिया. So China is planning on constructing a super dam that is on the river of Yarlung Sangpo.
Yarlung Sangpo. It is the Brahmaputra river is called Yarlung Sangpo in the Tibetan region. So basically, China on is a upper stream state here, upper stream nation here, and we fall on the lower stream. So that is why the countries located on the lower stream region, they become more vulnerable to the implication that the dam will be having. There are also various dams which are already operational on the river. For example, Zangmu Dam. There are different challenges regarding technology and also logistics. So Brahmaputra is a transnational river. So that is why this issue also becomes transnational. And water diplomacy, water dialogue, these are the important keywords जो यहाँ पे हो जाते हैं important. And Zangmo Dam is also operational. So using the river as a political leverage, उसका क्या हम इसको एग्जाम्पल बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपर रिपेरियन स्टेट है, कंट्री है. सो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया क्या स्टेप यहाँ पे ले सकता है. तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारा रीजन है, सबसे पहले तो उस पूरे ही रीजन की कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करनी चाहिए. We should improve the monitoring and telemetry stations which are located there. Blueprint is needed for an integrated approach for flood diversion, for mitigation, for embankments, inland navigation. Then also inland waters, for example, National Waterway 2. उनका भी हम potential increase कर सकते हैं. It can also act as a critical economic corridor. It is located on Brahmaputra. So we can have direct access to Chittagong port in Bangladesh and Haldia port in West Bengal. And we can also be boosting the trade between the Southeast Asian countries. So these are the things which are needed to make sure our security. And यहाँ पे क्वेश्चन भी होता है कि क्या हम, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ फॉर्म की है हमने फॉर वाटर शेयरिंग पर्पसेस, क्या उसी का ऑल्टरनेटिव हम चाइना के साथ नहीं लेके आ सकते? तो क्या हमें उस ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए? देन सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट. सो सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस की बात करते हैं तो बेसिकली इट क्रिमिनलाइज करता है डिफरेंट एक्ट्स को दैट एक्साइट आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज. पेनलाइज भी करता है इन एक्ट्स को विच आर परसीव्ड एज इंडेंजरिंग टू द सॉवर्निटी, टू द इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. सो वाइल एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता सेडेशन को, बट उसके बाद भी ओवर रीच के कंसर्न्स यहाँ पे रेज होते हैं. जो आर्टिकल यहाँ पे आईपीसी के अंदर भी हमने बात किया, आईपीसी के अंदर 124A, इट इज नाउ अंडर सेक्शन 52 ऑफ बीएनएस. तो ये जो सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस है, यहाँ पे बेसिकली जो क्रिमिनलाइज किया जा रहा है उसमें हमने देखा कि 540 पीपल वर अरेस्टेड बट ओनली 12 वर कन्विक्टेड. सो हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन वहां पे मेंशन भी किए गए हैं उनको ठीक तरीके से हमने ब्रॉड वे में, जैसे इंडेंजरिंग क्या है टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, वो काफी ज्यादा वेग है. एंड उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. जैसे कि टर्म नोइंगली लिखा गया है, तो एक ब्रॉड ब्रॉड बेसिकली हम बोल सकते हैं डेफिनेशन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होना चाहिए इसके लिए. जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं जैसे इंडेंजरिंग सॉवर्निटी, नोइंगली, सो कहीं ना कहीं देयर इज लो थ्रेशोल्ड फॉर गिल्ट. सो शेयरिंग कंटेंट नोइंगली इट कुड ऑल्सो सफाइस टू establish liability even if the intent was absent. So misuse कहीं ना कहीं इसका होना बहुत ज्यादा easy हो जाता है. There is also impact on freedom of speech. So दो important यहाँ पे cases हैं, एक तो बलवंत सिंह केस 1995, then also केदारनाथ केस 1962.
सो बलवंत सिंह केस में बोला गया है कि जो सेडिशन है इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कैजुअल स्लोगनरिंग। सो कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि सिर्फ स्लोगन कैजुअली स्लोगनरिंग करने के ऊपर। वैसे ही केदारनाथ केस 1962 इट आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। So there is need for distinguishing between the casual expressions and जो actual intent है to harm the sovereignty. So that is the major debate here. As we say that India is a marketplace of ideas. So it is very vital component of democracy also, and we must apply and we must balance the interests here. So for GS2, GS3, and even for essay, we can write it as a challenge in freedom of speech, or we can say balancing the interests with national security. So the concept of dual citizenship in India. So currently under Article 5 in the Constitution, Indian citizenship, it is based on domicile and birth, and India only have a single citizenship mechanism. So NRIs that are non-resident Indians and PIOs that are people of Indian origin, they hold the limited rights, but they cannot vote or participate in the political processes in India. So Citizenship Amendment Act 2019 becomes important in addressing specific minority communities, but dual citizenship offer नहीं किया जाता है। बहुत लोगों ने क्रिटिक भी किया है उसको। It can create a risk of creating divided loyalties, a clear line to maintain the difference between full citizenship and residency rights. It will be difficult. Citizens, they must choose between acquiring the citizenship of another country or retaining the Indian citizenship while maintaining a single citizenship mechanism for India. So there are cultural connections. There is also emotional connection of the Indian origin population abroad also to their homeland. So recognizing the no dual citizenship policy, it is also considered by some thinkers that it is strengthening the ties with the Indian diaspora. OCI, that is Overseas Citizenship of India, वो एक क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव है टू डुअल सिटीजनशिप ऑल्सो, जहाँ पे आपको एडिशनल राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि यूएस की बात करते हैं या यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप दिया जाता है and it enables their diaspora to vote and participate in politics even without losing their native ties. But इन कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइज्ड यूएस सिटीजन्स, दे कैन नॉट बिकम प्रेसिडेंट अनलेस दे आर बोर्न इन द यूएस। सो डिफरेंट चैलेंजेस हैं एंड डिफरेंट कंसर्न्स हैं। तीन मेजर कंसर्न रेज किए गए ऑफ डिवाइडेड लॉयल्टी आफ्टर अटेनिंग डुअल सिटीजनशिप. What if it will weaken the national unity and it will create more conflicts on issues that are very sensitive in nature? Then it can also serve as a starting point of populist agendas rather than addressing the substantial diaspora concerns. It can also make the implementation very complex. So opportunities hain, but there are also challenges. So creative alternative that India is having is OCI, then allowing voting for NRIs and also PIOs we are having. So important Article 5 to 11, which talks about citizenship in India, how the citizenship will be granted, how it will be eliminated, and Article 5, which talks about single citizenship. Article 11, which gives the power to the parliament to make laws on citizenship. And उसी power को drive करके we are seeing various acts जैसे कि Citizenship Amendment Act 2019 also. Z-More Tunnel all year round connectivity provide करेगा Kashmir to Ladakh corridor. So it would be safe to drive to Sonmarg in winters also. तो हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी हम कितना बढ़ा रहे हैं इन दी वैली.
तो फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। देन नेशनल जीनोम बायोडेटा। तो जीनोम इंडिया डेटाबेस की हम यहाँ पे बात करें तो रिसर्चर्स दे आर going forward with various options. So it is also known as that the data of the researchers, it will be available to the Indian public also. So Indian Biological Data Center in Faridabad, Haryana. So they have conducted the first analysis of the genomes. So क्या इससे बेसिकली जीनोम डेटा पता होने से हमें क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहले साइंटिफिक टर्म्स में बात करते हैं तो क्या डिजीजेस से हमारे एंसेस्टर्स ने डील किया है उसके बारे में हमें पता चल सकता है। वॉर एंड डिफरेंट सिचुएशंस जो काफी ज्यादा सीरियस हो सकती हैं, कैसे हमारी एंसेस्ट्री ने उसके साथ डील किया है। डीएनए प्रोफाइलिंग डेटाबेस जी। तो बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस डिजीजेस भी होती हैं जो हम बोलते हैं कि जेनेटिकल डिजीजेस हैं, उनके अंदर भी हेल्प करेगा उन डिजीजेस के लिए ड्रग थेरेपी को और एफिशिएंट बनाने के लिए। एंड ऑल्सो अपने पास्ट अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री तो कल्चरल हेरिटेज उसको भी जानने में हेल्प करेगा। सो दैट इज व्हाई इंडियन जेनेटिक डाइवर्सिटी इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। देन मेकिंग ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल। So there are challenges of irrigation, over extraction, there is water contamination regarding fluoride also। हमने देखा कि कैसे वो आईक्यू लॉस में इम्पैक्ट करता है। That is why it is important to make groundwater sustainable because there are challenges. Over exploitation in states like Rajasthan, Punjab, Haryana, they are facing significant challenges of groundwater depletion क्योंकि वाटर डिमांड काफी ज्यादा है फॉर इरिगेशन एंड इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक पैडी। 8% जो ग्राउंड वाटर का यूसेज है वो इंक्रीज हुआ है सब्सटेंशियली फॉर इरिगेशन बिटवीन 2016 टू 2024 इन इंडिया। सो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ है एंड ग्राउंड वाटर यूसेज इज ऑल्सो इंक्रीज बाई 8%। देयर इज ऑल्सो ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो कि जिसमें नाइट्रेट होते हैं, हेवी मेटल होते हैं, सॉल्ट होते हैं जो कि सीपेज कर जाते हैं अंडर द ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर को इम्पैक्ट करते हैं। हेल्थ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आता है। सो डिफरेंट स्टेट्स लाइक इसमें भी हम पंजाब हरियाणा की बात कर सकते हैं, तमिलनाडु ऑल्सो दैट इज फेसिंग पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज, क्रोनिक इलनेस हो सकती है, क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो सकती है। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? सबसे पहले तो हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए सिर्फ फील्ड क्रॉप से, डिफरेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड ऑल्सो मिलेट प्रेन्योर्स की भी हमने बात की तो मिलेट को हमें और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। डिफरेंट स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना ऑल्सो, जो कि इन्हीं बेसिकली इन्हीं चैलेंजेस को डील करती है। तो उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ऑन द ग्राउंड लेवल। एंड ऑल्सो कल हमने देखा था कि देयर वॉज ऑल्सो अ टर्म रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड, ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड, जिसके वजह से हम वाटर यूज जो है इन दी एग्रीकल्चर उसको और एफिशिएंट बना पा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हेयर। सो GS3 जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड इश्यूज हैं, कैसे उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट हेयर। क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट्स शुड ऑल्सो हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन रैम्पिंग अप द infrastructure, but not only the state government but also the citizens, they are the key holders of the responsibility here, and the resources that must be provided by the state. Then center to regroup about 1200 medical devices for uniformity. So रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ताकि और क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी मिल पाए। डिफरेंट चेंजेस किए जाएंगे जैसे कैटेगरीज के अंदर और ज्यादा स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन किया जाएगा। CDSCO का इम्पोर्टेंट रोल है इन ओवरसीइंग द रेगुलेशन, दैट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट लाइसेंसिंग विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अप्रूवल under the new laws.
तो इंडिया का जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है, इट इज वर्थ $11 billion with an expected growth trend to be $50 billion by 2030. बट यहाँ पे चैलेंज एड्रेस किया जा रहा है ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन रेगुलेशन. देयर आर इनकंसिस्टेंसीज regarding the aspect of manufacturing. So there is need for more clarity for the manufacturers, ताकि efficiency and safety standards को uphold किया जा सके, and also the confidence in India's healthcare sector, both domestic level के ऊपर भी and global market के ऊपर भी, that becomes important. तो state licensing authority को ऐड किया गया है, उनसे अप्रूवल जरूरी होगा. सो GS3 हेल्थ केयर के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे हम रिफॉर्म लेके आ रहे हैं. एंड ऑल्सो जो मेडिकल डिवाइसेस का सेक्टर है, उसमें भी हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, तो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग भी हम प्रमोट करते हैं. देन वेल्थ टैक्स. सो बेसिकली 4 कैनन है ऑफ टैक्सेशन. 4 प्रिंसिपल्स आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट, जो कि एडम स्मिथ यहाँ पे बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो इक्विटी, दैट टैक्सेस जो हैं दे मस्ट बी प्रोपोर्शनल to the ability of the taxpayer, and it should be based on the protection that they receive from the state. So जो wealth tax है, it basically aligns with this perspective. It is, but the practical application जो है of imposing the wealth tax, it creates challenges. So सबसे पहला है equity. Then next we are talking about certainty, that जो tax rules है, they must be giving clear guidelines regarding the timing, regarding the amount and method of payment. फिर कन्वीनियंस की भी बात की जा रही है, कन्वीनियंस इन टू पे इन टाइम एंड व्हाट टू व्हाट मेथड. सो वेल्थ टैक्स के साथ बेसिकली बोला जा रहा है कि इट मे नॉट मीट दिस क्राइटेरिया फॉर टैक्स पेयर्स. ऑल्सो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जो टैक्स कलेक्शन कॉस्ट है, इट मस्ट बी मिनिमाइज्ड. अ वेल्थ टैक्स, इट मे इन्वॉल्व हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी है इन वैल्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द वेल्थ. सो कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स की यहाँ पे बात की गई. न्यूट्रलिटी की भी बात की जा रही है, सिंप्लिसिटी होना चाहिए. then also elasticity, that the taxes they should adapt with the economic conditions and not be rigid. but feasible होना सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर टैक्स impractical होगा, even if ideal on paper, it should not be implemented. and market value को assess करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि fairness को maintain किया जा सके. तो वेल्थ टैक्स के साथ कुछ कंसर्न्स हैं सीरियस, दैट इज, एक तो उसके कंप्लायंस में इशू हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम क्रिएट वो कर देगा. इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसके ऊपर आ सकता है. इन्वेस्टमेंट में डिस्करेजमेंट देखा जा सकता है. ऑल्सो प्रैक्टिकल चैलेंजेस, जैसे कि इलिक्विड एसेट जो है उनको वैल्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल लैंड होल्डिंग है, गोल्ड है, या फिर अनलिस्टेड शेयर्स हैं. So these are the practical challenges that we will face in terms of wealth tax. Then financing India's future growth, it is a challenge and it must be met. So India aims to become a developed country by 2047. There are different challenges that India is facing in terms of private investment, in terms of infrastructure. So India needs real GDP growth of 6 to 7% annually to meet this aspiration. National infrastructure pipeline यहाँ पे important है, which requires 1.3 trillion dollars in investment by 2030. तो डिफरेंट सेक्टर जैसे कि MSME, मैन्युफैक्चरिंग, देन ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वहां पे भी कैपिटल इनफ्लोज की डिमांड काफी ज्यादा है. हाउस होल्ड फाइनेंसिंग, सेविंग्स, वहां पे फंडिंग ग्रोथ क्रिटिकल है. देन कुछ बैरियर्स भी हैं, जैसे कि इनफ्लोज फ्रॉम द FDI, दे आर रिमेनिंग स्टैग्नेंट एट 70 to 80 billion dollars एनुअली. कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, वहां पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लिमिट फंडिंग की हमें जरूरत है. देन पेंशन और जो इंश्योरेंस फंड है, वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज, वो भी एक लिमिटेशन क्रिएट करते हैं. तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना बिकम्स इम्पोर्टेंट. FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको स्ट्रीमलाइन करना, एंड ऑल्सो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करना.
सो लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिसीज के ऊपर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन लेसन्स फ्रॉम 75-year-old national sample survey. So NSSO, National Sample Survey Organization, it was set up in 1970. Autonomous governing council है and basically सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में स्टैटिस्टिक्स देती है, जो की डेटा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डेटा गैप्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हाउस होल्ड कंजम्पशन, इनको एड्रेस करने में. तो एनएसएस मॉडल बेसिकली ये शोकेस करता है कि जो ऑटोनॉमी है इन द स्टेट लेवल डेटा कलेक्शन एंड इनोवेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रीजनल ऑफिसर्स भी है, लोकल लेवल पे भी वो डेटा, हाई क्वालिटी डेटा कलेक्ट करते हैं. बट उसी के साथ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि जो मेथड है ऑफ डेटा कलेक्शन इट इज ट्रेडिशनल. तो नई टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन होना जरूरी है एंड क्रिटिकल है बेसिकली डिफरेंट ट्रेंड्स को हमें बताने में, लेबर मार्केट चेंजेस को हाईलाइट करने में. देन पीएमओ इज आल्सो वर्किंग ऑन अ ब्लूप्रिंट टू इंडस्ट्रियलाइज द नॉर्थ इंडिया. सो ब्रिज करने की बात की जा रही है द नॉर्थ एंड द साउथ डिवाइड by pushing investments in the north. States like northern and eastern states like Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and Odisha, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. उन्नति की भी बात की जा रही है, उन्नति स्कीम दैट इज उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024. डीपीआईआईटी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो फोकस एरियाज होंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम सेटअप करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ऑल्सो इंकरेजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप ताकि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सके. बट क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि हिस्टोरिकल अंडर डेवलपमेंट है इन दी नॉर्थ, बिकॉज एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा है, लेबर मार्केट डिस्पैरिटी रही है. साउदर्न स्टेट भी कंसर्न लेके आ रही हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है क्या वो सिर्फ नॉर्थ के ऊपर है, क्या उनको लेस अटेंशन मिलेगा फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ. सो कैसे हम बैलेंस क्रिएट करेंगे बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ एंड दोनों को इंटीग्रेट करेंगे. Then how the emerging economies they could prosper in a protectionist world. प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, डेवलप्ड नेशन की हम बेसिकली बात कर सकते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं लिमिटेड रहती है फॉर द ट्रेडिशनल लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स. तो चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के लिए, जैसे कि ऑटोमेशन या फिर रीशोरिंग हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो लो स्किल्ड वर्कर्स थे उनकी जॉब्स को रिस्क हो जाता है. एंड ऑल्सो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है वहां पे भी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, मेजर फोकस सर्विस एक्सपोर्ट्स पे भी किया जा रहा है, जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर एंड ऑल्सो एजुकेशन. तो डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन जो है, लोकल एम्प्लॉयमेंट है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ देन इंफ्रास्ट्रक्चर इस शिफ्ट को सपोर्ट करने के लिए. तो कहीं ना कहीं मिक्स है ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड ऑल्सो डोमेस्टिक फोकस्ड इकोनॉमी, दैट इज इम्पोर्टेंट यहाँ पे. देन हम आउटफिट की यहाँ पे बात